Welcome to the online lecture of Sharad B. More English High School. So, yesterday we have completed till question number 3. Fourth was your homework. Now, I'll continue from next question, that is question number 5. What is given here in the fifth question? 8p cube minus 27 upon p cube. Okay. So, now we have to factorize this algebraic expression. Okay. Now, let us solve this. 8p cube minus 27 upon p cube. Okay. Now, first of all, what we have to do, we have to obtain the values of a and b. A और b की क्या करना है हम लोग को? Values calculate करना है. Now, as we know, 8 is the cube of 2, so we will write here 2, right? And instead of writing p raised to 3, we will write p and 2p के ऊपर आप क्या करोगे? Whole cube apply करोगे. Clear है? Now, middle sign क्या है? Minus. Middle sign is what? Minus. Then, next. 27 p cube, right? 27 upon p cube. So 27 is the cube of 3. So we will write here 3, right? Now denominator में क्या आ जाएगा? p. And again यहाँ पर भी क्या करोगे आप? 4 raised to 3 लिखोगे. Got it? So now we got the values of a and b. So a is equals to 2p. b is equals to 3 upon p. Okay? Now we have to apply the formula of a cube minus b cube. So what is the formula? Let us revise once. A cube minus b cube is equals to a minus b into a square plus ab plus b square. Right? Got it? Now next question. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? यही क्वेश्चन में आपने जो a और b की वैल्यूज ली हो उसको आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है. सो 2p होल क्यूब माइनस 3 अपॉन p होल क्यूब is equals to a cube minus b cube is equals to what? A minus b, right? So what is the value of a? 2p. Value of b is what? 3 upon p. So we will write here 2p minus 3 upon p, right? Into, now a square plus ab. A square means 2p square, right? 2p square plus a into b means 2p into 3 upon p, right? 2p upon 2p into 3 upon p plus b square means 3 upon p whole square, right? So now we will further simplify it. Okay. So 2p minus 3 upon p. So it will be as it is 2p minus 3 upon p into 2p whole square means 4p, right? 4p raised to 2. 2p plus क्या हो जाएगा? 4 and p raised to 2 is what? p square, right? Plus 2p into 3p, 3 upon p. Now you can see here p is present in numerator and it is also present in denominator, right? Numerator में है and denominator में भी है, so it will get cancelled. So remaining is what? 2 into p only. Plus 3 upon p whole square means 3 square is what? 9 and p square is p raised to 2. So here it's your final answer. Means factors of the question 2p cube minus 3p 3 upon p cube, right? Is what? 2p minus 3p into 4p square plus 2p plus 9 upon p square. Okay. Now further. Next question. Question number 6. 343a cube
minus 512 b cube. So it's again very simple. Just what you have to do, I'll explain you what is the value of a and b, then you will solve it. Okay, now 343 is the cube of 7. Okay, so here it will become 7a whole raised to 3 minus 512 is the cube of 8. So here you will write 8b whole cube. It means value of a is what? 7n. Value of b is what? 8b. Simple है. Now what you have to do, you just have to substitute the values of a and b in the given formula. Got it? So in this way you are going to solve the question number 6. Okay. Now again similarly you have to solve the 7th one also. 7th में मैं आपको बता देती हूँ a और b की values क्या रहेगी. 64 किसका cube है? You know that is the cube of 4. So here it is now 4x whole raised to 3 minus 729 is the cube of 729 किसका cube है? It is the cube of 9. So here you will write 9y whole raised to 3. Got it? So a cube minus b cube. So what is the value of a? 4x. Value of b 9y. So a की वैल्यू और b की वैल्यू लेके आपको क्या करना है? सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7. Got it? Now let us see the 8th question. Question number 8. 16a cube minus 128b cube. A cube minus 128b cube upon b cube. Okay, now we will solve this question. First of all, what you have to do, you have to take out the common term. Okay, means 16 किसी particular number का cube नहीं है, right? But आप अगर 16 को 2 से divide कर दोगे means 80, so it will 8, right? 2 से divide करने पे तो 8 किसका cube है? 2 का, right? तो आप क्या करोगे? जो 16 है आप क्या करो उसको, उसमें से 2 you have to take out the 2 common. Okay, so what you will do, you will take out the 2 common. So now it will become 8, right? 2 8 is 16 a cube minus similarly 128 में से अगर आपने 2 कॉमन ले लिए, so what is the remaining? 2 6 are 12, 2 4 are 8, so 64 is remaining, right? Means कॉमन लेने पे आपके पास remaining terms क्या है? 8a cube minus 64 upon b cube. Okay, now you have to keep the 2 as it is. You just have to convert this in the format of a cube minus b cube. Now 8 is the cube of 2, so here you will write 2a whole cube. Okay, like this, minus 64 is the cube of 4 and here you will write 4 upon b whole cube. Got it? Now we got the values of a and b. A is 2a, b is 4 upon b. Okay, now we will apply the formula of a cube minus b cube. 2 will be as it is. Okay, 2 जो constant है वो as it is रहेगा, आपको सिर्फ इस पे आगे के टर्म पे अप्लाई करना है. ठीक है, 2 as it is रखोगे. Now सबसे पहले a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या होता है एक्सपेंशन में इसका फॉर्मूला a माइनस बी, राइट? तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 2a माइनस 4 अपॉन बी, राइट? a की वैल्यू 2a है, b की वैल्यू 4 अपॉन बी है. गॉट इट? नाउ इनटू a स्क्वायर मींस स्क्वायर ऑफ 2a प्लस b a into b means 2a into 4 upon b, right? Plus b square means 4 upon b whole square. Okay, in this way you have to solve it. Now अब क्या करोगे? इसको simplify करोगे. 2 as it is रहेगा, 2a minus 4 upon b, okay, into 2a square means 2 का square 4 हो गया और a का square a raised to 2 plus 2 times a into 4 upon b, right? Now here you can see आप क्या करोगे? जो numbers है उसको multiply करोगे. 2 and 4 को, 4 2 are 8, right? 8 into a upon b. Got it? Plus 4 square 16 होता है and b का square क्या हो जाएगा? b raised to 2. Got it? So now you can see there are two brackets, 2a minus 4b, 4a square plus 8a upon b plus 16 upon b square. अब आप 2 को फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हो इस ब्रैकेट से, राइट? 2 2 जा 4, सो 4a
4 टू ज़ा 8, सो 8 अपॉन बी। ओके, तो ये एक टर्म हो गया एंड सेकेंड रिमेनिंग वाला एज इट इज रहेगा 4a² प्लस 8a अपॉन बी plus 16b square. Got it? So it means it's your final answer. Okay. Factors of the given questions question क्या है? Factors क्या है इसके? 4a minus 8b into 4a square plus 8a upon b plus 16 upon b square. Okay. So these are the factors. Now here we have completed first question. Practice set 6.3 का question number 1 complete हुआ. Now next question, second question. सेकेंड क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई, मीन्स आपको जो टर्म्स है उसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग द फॉर्मूला. ओके, हियर यू कैन सी वन एग्जांपल 2x plus 3y whole cube minus 2x minus 3y cube, right? So now you can see it, first term is in the form of a raised to 3, that is a cube, right? And middle sign minus a, and second term is in the form of b cube, right? So here value of a and b is already given, right? What is the value of a? ए की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3y, राइट? एंड बी की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3y. ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है. तो आप सिंपली क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का. सो व्हाट इज द फॉर्मूला, ए माइनस बी, राइट? ए की वैल्यू 2x प्लस 3y है, बी की वैल्यू 2x माइनस 3y. देन ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर क्या हो गया 2x प्लस 3y का स्क्वायर, है ना, प्लस a into b means 2x plus 3y into 2x minus 3y plus 2x minus 3y whole square. ठीक है, so now you have applied the formula of a square plus ab plus b square, right? Now what you will do, आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे. फर्स्ट स्टेप एकदम सिंपल है, जस्ट आपको क्या करना है, जो आपका फॉर्मूला यूजिंग दिस फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी, तो ये जहाँ जहाँ भी ए और बी है तो वहाँ आपको ए और बी की वैल्यूज पुट करनी है, सब्सटीट्यूट करनी है. आफ्टर दैट जस्ट यू हैव टू डू इज द मल्टीप्लीकेशन, आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है. ओके, और जो जहाँ पे जो भी पर्टिकुलर टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है और जहाँ पर भी किसी भी पर्टिकुलर टर्म का स्क्वायर कैलकुलेट करना है वो करना है. ओके, मीन सिंप्लीफाई करना है आपको. ठीक है, सो 2x प्लस 3y इंटू सॉरी माइनस है ना, तो माइनस के साथ आप क्या करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे. सो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3y. नाउ यू हैव ओपन द ब्रैकेट. अब सेकेंड टर्म में देखो, सेकेंड टर्म में आपको क्या करना है 2x प्लस 3y होल स्क्वायर, राइट? तो आप इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे. कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर. ये आप स्मॉल स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हो. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट? तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर निकालोगे, a स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, राइट? So 2x square is what, 4x square plus 2 times a into b. तो a को और b को मल्टीप्लाई करोगे आपको 6xy मिलेगा, राइट? और जब 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12xy, राइट? देन प्लस b स्क्वायर मीन्स 3y स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर. सिमिलरली आगे वाले टर्म्स में भी आप क्या करोगे, ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे तो आप उसको क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे. एंड जो नेक्स्ट टर्म है उसमें क्या हो रहा है 2x माइनस 3y होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे. ठीक है, गॉट इट? सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. अब जो रिमेनिंग टर्म्स है आपको उसमें चेक करना है कि कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं और कौन से ऐड हो रहे हैं. तो जो कैंसिल होंगे मीन्स जिसके पास अपोजिट साइंस होगी वो कैंसिल हो जाएंगे सिमिलरली, और जिसके पास सेम साइन होगी वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. ठीक है, सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो लेट अस स्टार्ट डूइंग द फर्स्ट वन, सिंप्लीफाई. First question, x plus y whole cube minus x minus y whole cube. Now, first of all, you have to use the formula. Which formula? A cube minus b cube. So I am writing it here. A cube minus b cube.
is equals to a minus b into a square plus a into b plus b square. Okay, now what is the value of a? X plus 1. A is equals to what? X plus 1. b की वैल्यू क्या है? x minus 1. नाउ व्हाट यू विल डू, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, जस्ट आप क्या करोगे, जहां पर भी a और b है फॉर्मूले में, आप क्या करोगे, वहां पर वैल्यूज पुट करोगे. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग a you will write x plus 1 minus, instead of writing b you will write x minus 1. क्लियर है? ये फर्स्ट टर्म हो गया आपका, ये वाला जिसमें आपने a और b की वैल्यूज पुट करे. नाउ सेकेंड टर्म, a स्क्वायर मीन्स x प्लस y होल स्क्वायर plus a into b means x plus y into x minus 1, right, into plus x plus y whole square, sorry x minus y whole square means b का b whole square ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, x minus 1. now what you have done, you have substituted the values of a and b everywhere. now आप क्या करोगे, फर्दर सिंप्लीफिकेशन करोगे. सबसे पहले फर्स्ट टर्म में जो ब्रैकेट्स है वो ओपन करोगे आप, राइट. तो x और y, x प्लस y है, माइनस के साथ आप ब्रैकेट जब भी ओपन करते हो तो साइन क्या हो जाती है, चेंज जाती है. x क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस में है ना तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट. ये हो गई फर्स्ट ब्रैकेट ओपन. ना सेकेंडली व्हाट यू हैव टू डू, y होल स्क्वायर. नाउ x प्लस y होल स्क्वायर में आपको क्या करना है, a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर, you all know a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square, right. now we'll apply the formula a square plus 2ab plus b square. okay, now a square, now here you can see value of a is x, value of b is y, right. so a square की जगह आप क्या लिखोगे, x square plus 2ab means 2xy, right, plus b square means y square. got it? now आगे क्या है, प्लस की साइन है, so you will write here plus. नेक्स्ट, अब सेकेंड टर्म क्या है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, मीन्स आपको क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है. सो नाउ अगेन हियर यू हैव टू यूज अ फॉर्मूला x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. आपने इसके पहले पढ़ चुके हो ना, जो जो फॉर्मूले इसके पहले आप पढ़ चुके हो, यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, अप्लाई करना है. जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट. देन एज यू नो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़े, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, राइट. मीन्स जो ए की वैल्यू उसका स्क्वायर लेना है, और जो बी माइनस की साइन के बाद आप क्या करोगे, बी की वैल्यू का स्क्वायर लोगे. इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट. और जो थर्ड फॉर्मूला यूज करना है वो है a माइनस बी होल स्क्वायर का. सो a माइनस बी होल स्क्वायर इज अगेन वेरी सिंपल, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ये तीनों भी फॉर्मूला हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, मिडल वाला जो सेकेंड टर्म है हम लोग का, ये वाला यहाँ. ओके, ये जो सेकेंड टर्म है उसमें यूज करेंगे. यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर. ठीक है, तो फर्स्ट वाले में तो अप्लाई कर दिए. अब सेकेंड है वो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है, तो उसका क्या हो जाएगा, फर्दर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट. देन प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट. तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट. जैसे आपने क्या करे, a की जगह x और b की जगह y करें. ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्दर सिंप्लीफाई. ओके, आपको क्या करना है, इसको आगे सिंप्लीफाई करना है. नाउ हाउ टू सिंप्लीफाई, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई. अब फर्स्ट टर्म है ना, अब फर्स्ट टर्म में आपको चेक करना है कि कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, कौन से टर्म्स ऐड हो रहे हैं. सो यू कैन सी, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की कि जहाँ पर भी अपोजिट साइंस है वो क्या करोगे आप, टर्म्स कैंसिल करोगे.
एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y प्लस वाई 2y. सो नाउ इट्स आवर फर्स्ट टर्म. नेक्स्ट, अब क्या करोगे आप सेकेंड टर्म में सारे जो भी टर्म्स के साथ में ब्रैकेट्स है वो ओपन कर दोगे विथ प्लस साइन, राइट. एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है, देन यहाँ पे प्लस है ना, तो साइंस एज इट इज रहेगी, चेंज नहीं होगी. प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy plus y square, right? Now you have to check whether the terms are been cancelling or you have to add them. Here x square and यहाँ पर भी x square है, same sign है ना, तो it means वो क्या हो जाएंगे, they will get add. So x plus x 2x square. Now 2xy minus 2xy cancel. Y square minus y square cancel, right? And यहाँ पर क्या है remaining x square plus x square plus x square. So here it is 3x square. 3 times क्या आ जाएगा x square. Okay. And then here plus remaining क्या है single y square. It means आपका जो terms, आपका जो आंसर आया फाइनल आंसर, what is that 2y into 3x square plus y square. Okay. Look again. यहाँ पर क्या किया आपने, जो भी टर्म्स कैंसिल हो रहे थे x और माइनस एक्स वो कैंसिल हो रहे थे, कैंसिल कर दिए, y प्लस वाई ऐड हो रहे थे, तो 2y. ओके. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई. अब इसमें से जो भी टर्म्स है यहाँ पर एक्स और एक्स तीनों भी साइन क्या है सेम है, तो वो तीनों ऐड हो जाएंगे, 3x स्क्वायर हो जाएंगे, राइट. देन माइनस 2xy प्लस 2xy कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या है ओनली सिंगल वाई स्क्वायर. सो हियर योर फाइनल आंसर इज 2y इंटू 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके. तो सिंप्लीफिकेशन में आपको सारे क्वेश्चन में यही स्टेप फॉलो करना है. So first question जैसे हम लोगों ने करे, similarly we have to do the second question also. Okay. Second question भी same process है. Now 3a plus 5b whole cube minus 3a minus 5b whole cube. Now let us solve this second question. So again what you have to do, you have to apply the formula of a cube minus b cube. So a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3a plus 5b, b की वैल्यू है 3a minus 5b. Okay. Now we will apply the formula 3a plus 5b cube minus 3a minus 5b cube means a cube minus b cube is equals to 3a. Now a cube minus b cube is equals to a minus b है ना. सबसे पहला स्टेप क्या आएगा आपका, फर्स्ट टर्म a minus b. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 3a plus 5b minus b ना. a की वैल्यू 3a plus 5b है, b की वैल्यू क्या है 3a minus 5b, राइट. Here you will write 3a minus 5b. Got it? ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म. देन सेकेंड टर्म में क्या होगा, a स्क्वायर मीन्स a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3a प्लस 5b, राइट. सो 3a प्लस 5b स्क्वायर प्लस a इंटू b मीन्स 3a प्लस 5b इंटू 3a माइनस 5b, राइट. 3a माइनस 5b प्लस b स्क्वायर मीन्स 3a
माइनस 5b होल स्क्वायर। ओके, ना सिमिलरली इसके पहले क्या करे थे हम लोग ने, जो फॉर्मेट में अप्लाई किए थे, सबसे पहले आपको क्या करना था, ए और बी की वैल्यूज चेक आउट करना था। ए की वैल्यू क्या है 3a प्लस 5b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? बी की वैल्यू क्या है 3a माइनस 5b, राइट। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, है ना। तो सबसे पहला टर्म क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, मीन्स 3a प्लस 5b माइनस 3a minus 5b, right? A minus b. Next, a square means 3a plus 5b whole square plus 3a plus 5b into 3a minus 5b means a into b, and then plus b square means 3a minus 5b square. अब नेक्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, वेयर यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ a एज 3a plus 5b and value of b as 3a minus 5b. नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई द टर्म्स। अब फर्स्ट टर्म कैसे सिंप्लीफाई होगा आपका, यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स, 3a प्लस 5b माइनस 3a प्लस 5b, मीन्स जो साइंस है एग्जैक्टली यहाँ पे प्लस है ना 3a की साइन, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगी जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे विथ नेगेटिव साइन, और माइनस साइन क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। सो नाउ इट विल बिकम प्लस 5b, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आगे वाला फर्दर कैसे सिंप्लीफाई होगा, क्या बताई थी मैंने अभी आपको, 3 फॉर्मूलेस बताई थी, राइट, जिसमें आपको ये सब्स्टिट्यूशन जो भी आप लोग ने करे उसमें आपको ये फॉर्मूलाज अप्लाई करना है। फर्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। सो a की वैल्यू क्या है 3a, b की वैल्यू 5b, तो आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। सो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, a स्क्वायर मीन्स 3a स्क्वायर, राइट, 3a स्क्वायर plus 2 into ab means 2 into 3a into 5b plus b square means 5b square, right। ये फर्स्ट टर्म हो गया। देन फर्दर इसके आगे कौन सा टर्म है, प्लस 3a प्लस 5b इंटू 3a माइनस 5b, मीन्स आप यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का। सो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज वॉट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 3a स्क्वायर माइनस 5b होल स्क्वायर प्लस 3a माइनस 5b होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, a माइनस b होल स्क्वायर मीन्स एज इट इज, जैसे फर्स्ट टर्म में आपने अप्लाई करे 3a स्क्वायर प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3a इंटू 5b प्लस 5b होल स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है आपको, जस्ट जो टर्म्स है उसको सिंप्लीफाई करना है, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करना है, जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड करना है। सो नाउ हाउ यू विल चेक, look here, first step 3a minus 3a get cancelled, 5b plus 5b they will get add, okay, so now it is 5 plus 5 10, so it's now 10b, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंडली आपको क्या करना है, सारे टर्म्स को एक साथ लिखना है विथ प्लस प्लस साइन, राइट। सो 3a स्क्वायर इज व्हाट 9a स्क्वायर, राइट। ना ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, लुक इट प्रॉपरली। यहाँ पे अगर आप मिस्टेक करोगे साइंस की तो आपका टोटली पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो 3a स्क्वायर क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर, प्लस है ना साइन, तो यहाँ पर क्या डालोगे आप प्लस 2 टाइम्स 3a इंटू 5b, राइट। तो क्या करोगे आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, एंड देन जो वेरिएबल्स है कौन कौन से a और b उसको साथ में लिखोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a b। देन आगे further here you can see plus sign, so you have to put the plus sign। 5b square means 5 का स्क्वायर 25 हो गया, b का स्क्वायर b raised to 2, right, plus sign, so here you will put plus। now 3a square minus 5b square, 3a square is what 9a square minus 5b square means what 25b square, got it। प्लस साइन है, प्लस पुट करोगे, 3a square means what 9a square minus 2 into 3a into 5b means 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, and यहाँ पर वेरिएबल्स a into b।
और साइन प्रॉपरली डालना है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ही रहेगी एज इट इज, ओके। प्लस 5b² मीन्स व्हाट, 25b²। नाउ क्लियर। आपने क्या करे, पूरे टर्म्स जहाँ पे स्क्वायर हो रहा था वहाँ स्क्वायर अप्लाई करे, जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ मल्टीप्लाई करे विथ प्रॉपर साइंस। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जैसे हम लोग ने फर्स्ट ब्रैकेट में जो भी टर्म्स कैंसिल और ऐड हो रहे थे वो करके 10 भी ऑब्टेन करे, वैसे ही यहाँ पर भी क्या करना है आपको, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहा है मीन्स जिसकी साइंस अपोजिट है उसको कैंसिल कर दोगे और जिसके साइंस सिमिलर है उसको ऐड करोगे, ठीक है। नाउ लुक हियर, 9a² प्लस 9a² प्लस 9a² मीन्स यहाँ पे क्या आएगा आपका 10b के आगे 9 प्लस 9 प्लस 9 सेम साइन है ना तो ऐड हो जाएंगे, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 9 27, so 27a², ओके। नेक्स्ट 30ab माइनस 30ab, अपोजिट साइंस है कैंसिल हो जाएगी, ओके। प्लस 25b² माइनस 25b², अपोजिट साइंस है कैंसिल हो जाएंगे, राइट। रिमेनिंग क्या है, सिर्फ लास्ट में क्या है, प्लस 25b², तो क्या लिखोगे यहाँ पे, प्लस 25b²। इट मीन्स दिस इज योर फाइनल आंसर दैट आई हैव रिटन विथ रेड, ओके। ये आपका फाइनल आंसर है। इट मीन्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट यू विल गेट, 10b into 27a² plus 25b², क्लियर है। सो हियर वी हैव completed second question.